اختلاف کرے. آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی, محبت کی بات کی, افیئر کی بات کی, رشتے کی بات کی, اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے, اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا, اس کے ساتھ زنا کر لیا, اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی, سارا کھیل کود کر لیا, اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے, تیرے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. یاد رکھنا, کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا, پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا, پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے, پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی, اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی. اللہ اکبر. اب اس کا شباب لوٹ کر, اس میں عیب نکال کر, اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے, دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا. تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی. کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے, کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے, کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے, پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں, جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں, سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا, کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا, نہ کھانے کی حاجت تھی, نہ شرعی کوئی معاملہ تھا, صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا, کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی, مولا آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, مولا مجھے عدل چاہیے, اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی, جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی, اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا, وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا, آبرو سے کھیلا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو, یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے. اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اس دن اپنا کیا ہوگا, جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, اس دن اپنا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں, خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے, مارے پیٹے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, یہ دنیا ہے, یہاں عیش کرنے, آرام کرنے, ظلم کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ آخری بات تذکر کروں گا, اس کے بعد بات پوری کر لیں گے, اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے, اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائے, ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے. اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ, اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے. یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے. تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا, پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں, کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ. یہ 5ویں بات ہے, لیکن اس کو دھیان سے سنیں, اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے.
मुर्दार की बदबू, और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ ऐलान जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअम मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं, साहबा ने पूछा हुजूर ये हबाअम मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोज़ोन के जर्रात होते हैं जो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, इतने बारीक कर देगा अल्लाह, यानी इतनी बेवकूत हो जाएगी उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला उनके जर्रे जर्रे कर देगा, उनकी नेकी कोई काम की होगी। और अल्लाह पाक उनकी नेकियों को रद्द फरमाएगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इस सिलसिले में हजरत ज़ैद एक बात बयान करते हैं, फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान गया, जब कब्रिस्तान पहुंचा तो एक दरख्त को टेक लगाकर मैं बैठ गया, इसलिए कि मैं चाहता था कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करूं। ऐसे मैं टेक लगा के बैठ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी आंख लगी, आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हुई। मैंने ख्वाब देखा कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, किसी के उजले लिबास है, किसी के मैले लिबास है, कोई कैसा है कोई कैसा है, लेकिन एक शख्स को मैंने देखा जब वो उसकी कब्र से उठा, उसकी कब्र से, तो एक आसमान से आग की चैन जंजीर आई और उसके हलक में डाली गई, और वो उसके हलक से गुजरते हुए पेट, और पेट के बाद फिर नीचे के मकाम से वो जंजीर निकल गई, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और चीखते चिल्लाते कहता था मुझ पर ये क्या अजाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजा नहीं रखता था? क्या मैं रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखता था? क्या मैंने हज नहीं किया था? क्या मैंने उम्रे नहीं किए थे? क्या मैंने सदका नहीं दिया था? क्या मैंने ज़कात नहीं दी थी? क्या मैं फलां नेक काम नहीं करता था? गर्ज के वो अपनी सारी नेकियों को गिनाएगा गिनाएगा गिनाएगा, इसका मतलब वो गुनहगार नहीं था, वो नेकोकार था, इसलिए वो वहां भी नेकियों को गिनाएगा। हजरत ज़ैद कहते हैं जब वो अपनी नेकियों को गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, बंदे तू सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले में और तन्हाई में होता था तब तू गुनाह करता था, अल्लाह से नहीं डरता था। तो जिसने तन्हाई के अंदर गुनाह किया अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। आपसे पूछता हूँ अल्लाह के बंदो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर रात की तन्हाइयों में चार दीवारी में क्या देखते हो? कौन क्या देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, वो गंदी फिल्में, वो गंदे मनाजिर, वो गंदी तस्वीरें रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं और लोगों के सामने नेकियां करते हैं, कब्रों से उठेंगे तो उनके बदन से मुर्दार की बदबू होगी। अल्लाह उनके साथ ऐलान जंग करता है, उनकी नेकियों को रेत के जर्रों की तरह बिखेर दिया जाएगा। अपने आप पे रहम करो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कौन है अपना सिवाय मुस्तफ़ा जाने रहमत के। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, एक ही सहारा है। अगर गुनाह कर करके उनका दिल दुखा दिया, उनको नाराज कर दिया, तो बताओ अपना क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, फारूक आज़म फरमाते हैं मैं तो इतना समझता हूँ गुनाह कोई भी करो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचती है, हुजूर का दिल दुखता है, कोई गुनाह करो दिल हुजूर का दुखता है। अब आपको से पूछता हूँ, चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, फारूक आज़म कह रहे हैं आका का दिल दुखता है। गंदी फिल्में देखते हो, फारूक आज़म कह रहे हैं आका का दिल दुखता है। किसी औरत पर बदनजरी करते हो, आका का दिल दुखता है। मस्जिदों को वीरान करते हो, आका का दिल दुखता है। नमाजों में सुस्ती करते हो, आका का दिल दुखता है। किसी मोमिन को गाली देते हो, आका का दिल दुखता है। इतना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में दुखाओगे और उसके बाद मैदान महशर में जब शफाअत की भीख लेने के लिए उनकी बारगाह में पहुंचोगे, अल्लाह न करे अगर उन्होंने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके ये कहा, ओ मुनाफिक झूठे, मुझसे इश्क का दावा करता था और मेरे दिल
को छलनी छलनी करता था, मेरे दिल को दुखाता था, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता था। बताओ भाइयों, जब सब ने ललकार दिया होगा तो उसी आमिना के लाल का सहारा होगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शफाअत होगी। अगर वो भी मुंह फेर लें, हालांकि उनके करम से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी मिजाज की नजाकत बेचैन भी करती है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे आका की गैरत बहुत नाजुक है। कितनी नाजुक है इतना अंदाजा कर ले। एक बार उम्मुल मोमिनीन ने अपने घर के दीवारों पे पर्दे लटका दिए तो आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर करके ये फरमाया कि हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन अगर दीवारों पे पर्दे लटका दे तो वहां से गैरत की वजह से चेहरा फेर लिया जाता है। इतने जराइम करके, इतने बड़े मुजरिम बनके हुजूर के दरबार में खड़े रहेंगे। अल्लाह अकबर, अगर उनकी गैरत की नजाकत ने मुंह फेर लिया, कहां जाओगे, किसके पास जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? इसलिए आज उनको मनाओ, आज उनको राजी करो, आज उनकी बारगाह में माफी मांगो, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ताकि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अगर कोई किसी आम आदमी का हाथ पकड़ के कहे कि अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर देना, मगफिरत मेरी करवा देना, तो वो कहेगा कि हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हम आवाम में से हैं, हमारी ना गुस्ल है सही है, ना हमारी तहारतें सही है, ना हमारी नमाज पढ़ने का तरीका आता है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। अब जब ये मिंबर पे बैठे हुए अल्लाह वाले किसी से ये बात करें तो ताज्जुब होगा, चे जाए कि इमाम जाफर सादिक ऐसा सैयद जिसकी गुलामी इमाम आजम जैसे लोग करें, वो जो है इल्म के मामले में उन जैसा उनके दौर में कोई नहीं था, तकवे के मामले में उन जैसा कोई मुत्तकी नहीं था, इबादत के मामले में उन जैसा कोई आबिद उनके दौर में नहीं था। और वो लोगों का हाथ पकड़ के कहते वादा करो कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, मेरी मगफिरत करवाना, मेरी सिफारिश करना, शफाअत करना। और लोग पलट के कहते इमाम आप तो सैयद हैं, सैयद आप तो सैयद आले रसूल हैं, हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे, आपके नाना शफीउल मुस्लिमीन है। तो इमाम जाफर सादिक रोते हुए जवाब देते, रोना तो यही है कि हम सैयद हैं। तवज्जो करें, कहते रोना तो यही है कि हम सैयद हैं, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि हमारे नाना को हम मुंह क्या दिखाएंगे। नाना को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है क़यामत के दिन। ये हाल है उनका जिनकी सियादत पर, इमामत पर, क़यादत पर, तकवा पर, ज़ुहद पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। वो क़यामत के दिन से इतने लर्जा बरअंदाम है। और यहाँ जिन्हें गुस्ल भी नहीं आता, वुज़ू भी नहीं आता, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, ये हालत है। और उसके बाद हम जन्नत के ठेकेदार बने, मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। बड़ी माजरत के साथ वहां फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, और वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज रातों को ज़ाय करने वालों, आज रातों को फजूल गुजारने वालों, वक्त को बर्बाद करने वालों, ये जिंदगी का कीमती सरमाया अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा दिया है। खुदा के लिए इसको ज़ाय न करो, इसको फजूल बर्बाद न करो, वरना मौत के बाद पछताना होगा। मौत के बाद सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन उस दिन का पछताना, अल्लाह अकबर, कोई फायदा न देगा। उसके बाद मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे, अल्लाह अकबर, जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा टोला है जो अपनी कब्रों से उठेंगे, इस हालत में उठेंगे कि उनके पेट पहाड़ों की जैसे बड़े बड़े पेट होंगे, और उनके पेटों के अंदर सांप, बिच्छू और आग दहक रही होगी। साहबा ने पूछा, आका वो कौन होंगे? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करते थे, ज़कात नहीं देते थे, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह पेट लेकर के उठेंगे। आज लोग ज़कात भी नहीं देते पूरी पूरी, और फिर कोई पैसा लेके भाग जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, माल डूब जाता है, आग लग जाती है, कहते हैं हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। याद रखना, जो पूरी पूरी ज़कात अल्लाह के लिए निकाल दे, मेरे आका फरमाते हैं उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, उसके माल की हिफाजत हो जाती है। फिर चौथे ग्रुप के बारे में मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने फरमाया कि जो चौथा ग्रुप कब्र से निकलेगा उसके मुंह से खून बह रहा होगा और खून लेकर के वो निकलेगा। साहबा ने पूछा आका जिनके मुंह से खून बह रहा होगा वो कौन लोग होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं जो अपने वादों को तोड़ देते थे, वादा खिलाफी करते थे, वो उनके मुंह से खून बह रहा हो। आज मैं समझता हूं कि शायद वादा खिलाफी को गुनाह भी नहीं समझते लोग। देखें, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क ये है कि मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है और मुनाफिक वादा करता है उसको पूरा नहीं करता, तोड़ देता है। कितने वादे करते हैं, अल्लाह से वादा किया उसका ख्याल नहीं, पीर से वादा किया उसका ख्याल नहीं। आइए वादे की वफा के हवाले से एक हदीस सुने की रिवायत से। अल्लाह अकबर, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाजार गए। बाजार जाने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने कहा यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। उसने कहा रुको अभी आता हूँ, और आका ने उससे वादा कर लिया ठीक है जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं ठहरूंगा, यहीं रुकूंगा। और उसके बाद वो शख्स गया और जाकर के भूल गया कि मैं किसी से वादा करके आया हूं या वादा लेकर आया हूं कि मैं अभी आता हूं, और उसने वादा कर लिया कि ठीक है तुम्हारे आने तक मैं रुकूंगा। फिर क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जब वो शख्स आया तो अल्लाह के रसूल वहीं पर मौजूद थे। उसने पूछा आप यहाँ? फरमाया तुमसे मैंने वादा किया था कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रुका रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ रुका रहा। और फिर मेरे आका ने न उससे लड़ाई की, न झगड़ा किया, न उसको डांटा, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ शख्स तूने मुझे मुशक्कत में मुब्तला कर दिया, तूने मुझे तकलीफ में मुब्तला कर दिया। ये ऐलान नबुव्वत से पहले का वादे का वफा करना था। जब मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान किया तो यही वाकया उस शख्स के ईमान लाने का सबब बन गया कि जो शख्स इंसान से किया हुआ वादा उसके साथ बेवफाई नहीं करता वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा है।